السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور حضرت سب خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ میں کہاں ہے ابھی؟ ابھی تو کارخانہ میں آئے ہیں کام کے لیے۔ کہاں ہے؟ وہیں پر ہاوڑا؟ ہاں ہاوڑا میں ہے۔ اچھا اللہ میں کل فون آیا تھا آپ کا، میں بات نہیں کر پایا۔ ہاں کل فون آیا تھا اس لیے فون کیے تھے۔ کل آپ جو ہے 1 گھنٹہ پہلے ویڈیو ڈالے تھے، وہ والا ویڈیو دیکھے تھے۔ فون بدتمیزی سے، وہ ایک بدتمیزی سے بات کر رہا تھا نا آپ سے بہت۔ اچھا 12 کا جمیل اختر 12 کا بتا رہا تھا، اب کیا 12 کا ہے بھی کہ نہیں ہے وہ؟ ہاں پتہ نہیں، ہاں وہی بہت بدتمیزی سے بات کر رہا تھا۔ ویسے کوئی بات کرتا ہے، بات لائن سے کیا جاتا ہے، ترتیب سے کہ اپنا بات کہو بھی، دوسرا کا بات سنو بھی، ہے نا؟ لیکن وہ تو بس یہ مان لا کہ ایک دم کافر کہو تھانوی صاحب۔ ہاں ان لوگ تو یہی بات ہے۔ اور ارے بھائی اگر کفر کیا ہوگا تو قیامت میں جواب دیں گے نا۔ جواب دیں گے۔ اور کوئی غیر عالم کا بات پہ اگر سب کو کافر کہنے لگے تو بس ہو گیا۔ دوسری بات ہے کہ اگر وہ ان کے حساب سے کافر ہیں تو وہ دیوبندی کم منع کر رہا ہے کہ مت مانو کافر۔ بھائی تم مان رہے ہو تم مانو، تمہاری مرضی، دوسروں سے کیوں کروا رہا ہو؟ دوسرے سے کروا رہے ہو کہ نہیں تم بھی کہو۔ ویسے حضرت ایک کتاب کا جو ہے نا آپ کو ہم اسکرین شاٹ لے کے بھیجے ہے، اس کو تھوڑا پڑھ کے تحقیقات کر کے جو ہے اس کو تھوڑا بتائیے نا۔ ہاں بھیجنا، مجھے بھیجنا۔ بھیجے ہے آپ کو، بھیجے ہے میرا واٹس ایپ میں جائیے گا، دیکھ لوں گا میں انشاءاللہ۔ ہاں دیکھیے گا اس کو اچھا سے پڑھ کے۔ دیکھو اوپر سے لے کے کفر کے فتوے تو سب پہ ہی بہت سو پہ لگے ہیں۔ حضرت حسین منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور ولی ہیں، معلوم ہے ہم کو پتہ ہے، ہم کامران سیاد صاحب کا اس کا اوپر میں پورا تفصیلی ویڈیو ہے۔ دیوبند والے بھی ولی مان رہے ہیں، بریلی والے کیوں مان رہے ولی؟ جب ان پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے، جیسے اسامہ احمد میں لگایا۔ اپنے منہ سے کہا بھی تھا کہ ہاں ہم خدا ہے۔ انہوں نے نہیں کہا، وہ تو ان کے منہ سے نکلا تھا، لیکن ان کو قتل بھی کر دیا گیا۔ اگر وہ خود کہتے تو پھر مسلمان ہی کا رہیں گے۔ جو اپنے منہ سے خود کہے کہ میں خدا ہوں، مسلمان ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ تو اللہ نے فرمایا نا، حدیث قدسی ہے، جو بندہ زیادہ نوافل پڑھتا ہے تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ حضرت تھانوی صاحب نے یہی کہا تھا کہ میں ہوتا تو یہ تعویل کرتا ہے، تو یہ تعویل تو اس زمانے کے عالم بھی جانتے تھے۔ یہ تعویل تو اس زمانے کا عالم بھی۔ اور فاضل بریلوی نے یہ تعویل کیا کہ اگر میں وہ جیسے موسیٰ السلام کے زمانے میں درخت سے آواز آئی تھی انی انا اللہ، تو اسی طرح منصور اللہ کے منہ سے آواز مانا جائے گا کہ آواز اللہ کی ہے، منہ ان کا ہے۔ تو جیسے فاضل بریلوی تعویل کر رہے ہیں، کیا یہ تعویل وہ نہیں کر سکتے تھے 12 سال پہلے کے عالم؟ لیکن ان لوگوں نے تو قتل کروا دیا۔ نہیں، یہ مشہور ولی نے کتاب میں لکھا ہے، تذکرۃ الاولیاء میں یہ بھی بات لکھی ہے کہ جب ان کو شہید کیا گیا تو کسی نے خواب میں پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہوا، تو اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے بخش دیا۔ پھر حضرت منصور اللہ سے پوچھا کہ جو آپ کے خلاف گروہ تھا اس کا کیا ہوا، جو آپ کے موافق تھا اس کا کیا ہوا؟ تو اللہ نے دونوں گروہوں کو بخش دیا۔ ایک گروہ شریعت کی وجہ سے میرا مخالف تھا اور ایک گروہ میرا موافق تھا مجھے صحیح مان کر، تو اللہ نے دونوں گروہوں کو نیت کی وجہ سے بخش دیا۔ یہ تذکرۃ الاولیاء میں ہے، مشہور واقعہ، حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ نے لکھا ہے۔ ٹھیک ہے حضرت، ابھی تو کام کا ٹائم ہے، کام کر لیں انشاءاللہ۔ آپ کے واٹس ایپ میں 2 پیج کا ہم بھیجے ہیں، وہی آپ کا فتاوی دیکھ لوں گا، اور آپ کو دیکھ کے تفصیلی بتائیے ایک دم۔ آپ جو ہاوڑا میں ہو، ہاوڑا میں کتنی مسجدیں ہیں تھوڑا سا اور بتا دو تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ ہاوڑا میں ابھی میرا تو اندازہ میں ہے نہیں کہ کتنی مسجد ہے، بہت ہے، پھر بھی 100 مسجدیں تو ہوں گی۔ 100 سے زیادہ ہو۔ 100 سے زیادہ؟ ہاں 100 سے۔ ہاوڑا چھوٹا موٹا شہر نہیں ہے، بہت بڑا شہر ہے ہاوڑا۔ اچھا ہاوڑا کلکتہ سے الگ ہے؟ کلکتہ سے الگ ہے ہاوڑا، ہاوڑا سٹی الگ ہے، کلکتہ سٹی الگ ہے۔ مطلب 25 لاکھ کی آبادی ہوگی؟ ہاں قریب۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا بھوپال کی طرح ہی ہوگا، بھوپال کے لگ بھگ۔ ہاں بھوپال کا لگ بھگ، مراد آباد بھوپال۔ اور یہاں میں مسلم آبادی بہت زیادہ ہے، پورا بنگال میں مسلم آبادی بہت۔ اچھا میں دیوبندی بریلوی کا کیا معاملہ ہاوڑے میں؟ ملا جلا ہے سب جگہ۔ اچھا کلکتہ میں اب دیوبندیت بہت ہو گئی؟ ہاں بہت ہے۔ آپ کا جو کلکتہ میں جو زکریا اسٹریٹ میں کولو ٹولہ جو مسجد ہے اس میں دونوں لوگ ہیں، وہاں پہ کوئی جھمیلا نہیں ہے۔ نا خدا مسجد میں دیوبندی بھی امام ہے، بریلوی بھی امام ہے۔ تو وہاں کے جو نماز پڑھتے ہیں تو مسلمان ہی نہیں ہے بریلی فتوے سے؟
हाँ, लेकिन तो ये बरेलवी भी इमाम है, वहाँ देवबंदी भी इमाम है, तो दोनों तो एक दूसरे के पीछे नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज भी दे रहे हैं, और फिर तो अवाम भी बरेली आ रहा है फतवे पे सब वो कोई। मुसलमान ही नहीं है, नाखुदा फिर मस्जिद में उसके जो नमाज बाद, पढ़ रहा है। हाँ, उसके बाद जो है उसमें अवाम भी जो है आधा से ज्यादा देवबंदी है, हाँ आधा बरे। कुछ लोग एकामात का टाइम में बैठे रहते हैं, ज्यादा लोग खड़े हो जाते हैं, मतलब जो खड़े हो जाते हैं वो लोग तो देवबंदी नहीं, है लोग। ऐसा लग रहा है कि अनकरीब बरेलियत खत्म हो रही है और होती जा रही है। होती तो जा रही है, लेकिन इन लोगों उसकी में वजह थोड़ा ये है मोड़ा कि नहीं, बरेलियत सुधार भी आ रहा है। जो बरेलियत बची है थोड़ी बहुत, वो चीख पुकार से बची है कि बरेलवी मौलवी चीखता बहुत जबरदस्त है, चीखता तो बहुत। इसलिए चीख रहा है कि कहीं बरेलियत खत्म न हो जाए, चीख चाक करके ऐसे बचा लो। लेकिन अभी 1-2 साल में इन लोगों को देखने मिल रहा है कि अब ये लोग जो है अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहना चालू कर रहे, पहले नहीं कुछ कहते दिन थे, बाद पहले देखना हर जगह ये हो जाएगा, मस्जिदों में बोर्ड लग जाएंगे, आमतौर से हो सकता है लगाने के, न देवबंदी न बरेलवी न जमात, कोई जमात या नहीं आई मस्जिद में, सिर्फ कुरान की तालीम होगी और 150 साल पुरानी किताबें पढ़ी जाएंगी। ये भी बोर्ड लगाने कलकत्ता में, बम्बई में, दिल्ली में कि नहीं साहब 150 साल पुरानी किसी भी आलिम ने लिखी हो वो किताब मानी जाएगी बस। और कलकत्ता शहर में जितने भी दिन हम घूमे ना, मतलब जो भी हम लोग तो जहाँ भी जाते हैं वहाँ जो भी मस्जिद मिलता है, नमक मिर्च चम्मच, एक बात सुनिए हजरत, हाँ एक बात सुनिए, 2 बात। हम लोग तो यहाँ में रह रहे, जैसे एक इल्जाम लगता है ना कि वो लोग दिखा दे कि वो लोग का पास में कोई 150 साल पुराना मस्जिद है या मदरसा है, वो लोग अपना कोई दिखा दे, ये लोग बोलते हैं। बरेली वाला लोग ये बात कहता है कि वो लोग अपना कोई 150 साल पुराना मस्जिद, साल पहले बरेली हो, लेकिन होता क्या है, बरेलवी भी सही कहते हैं, देवबंदी भी सही कहेंगे कि देवबंदी कहते हैं तुम दिखा दो बरेलवी, बरेलवी कहते तुम दिखा दो होता क्या है देवबंदी। कि 150 साल पुराना में जाने से फिर उन लोग कहीं मस्जिद मिल जाते हैं। अरे हजरत शेख मुहिद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने तो इस्लाम फैलाया है। उस जमाने में न देवबंदी थे न बरेलवी थे, सीधे सच्चे मुसलमान थे हजरत शेख के जमाने में, उनके बाद भी हजरत शेख मुहिद्दीन चिश्ती अजमेरी ने तो इस्लाम फैलाया था, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने, हजरत शाह बदरुद्दीन कुतुबुल मदार मकनपुरी ने। अच्छा, देवबंदी बरेलियों ने इस्लाम थोड़ी फैलाया है, इन्होंने तो आपस में एक दूसरे पर कुफर के फतवे लगाए, कुफर शिर्क के। क्या ख्याल है? ये हजरत सैयदना हाजी वारिस अली शाह साहब जिनका मज़ार देवा में, उन्होंने इस्लाम फैलाया। देखो वहाँ में कहाँ में गाड़ी लगा, निकाल दो। नहीं, ये बताओ आप, ये अभी वक्फ बिल का मसला आया है, क्या वक्फ देवबंदियों का ही है या बरेलियों का ही है या अहले हदीस का? सबका वक्फ है, सबका है। तो अब अगर ये देवबंद वालों को मुसलमान नहीं मानते, जाए दिल्ली में कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से कि साहब ये मुसलमान नहीं है, हमारा वक्फ आप छोड़ दो, इनका कब्जा कर लो आप। लेकिन हजरत इनका एक सहाबुद्दीन साहब है जो उन्होंने सपोर्ट कर दिया। चलो थोड़ा बहुत चलो, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। आप बोल रहे हो जो सहाबुद्दीन रिजवी साहब जो है वो सपोर्ट कर दिया वक्त बिल का। वो तो उसको तो अपन क्या माने, मुसलमान माने कि नहीं माने? बताइए, सारे लोग एक तरफ है, वो अकेला बोल गया वो है, फिर उसके बाद अंसार रजा है, शहाबुद्दीन तो अंसार रजा का भी वीडियो आई है। शहाबुद्दीन तो दगाबाज आला हजरत है। हाँ, अब देखो वो सुल्तानुल मुजाहिदीन हजरत मौलाना तौकीर रजा साहब, वो गाजी मिल्लत भी हैं और साहिब करामत है, करामत है उनकी, करामत है। अभी तक वो जेल में नहीं गए, इतना खुल खुल के बोलते हैं, वरना इससे पहले आजम खान जेल में गए, लेकिन सुल्तानुल मुजाहिदीन तौकीर साहब जेल में नहीं गए, आजम खान से ज्यादा बोल चुके हैं वो। हाँ, और हजरत मौलाना शाही इमाम पंजाब उस्मान साहब, हाँ, जो अभी दुनिया में छा रहे हैं हिंदुस्तान में, उनकी तकरीरें वायरल हो रही हैं, वो हैं असली इमाम, शाही इमाम पंजाब, शाही इमाम पंजाब। वो हक बात कहते हैं, बस हक बात कहते हैं हमेशा। ये हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब सूरत वाले, वो हक बात कहते हैं। ये लोग ऐसे हैं जो हक बात कहते हैं, वरना ज्यादातर तो देवबंदी बरेलवी में ही चलते हैं लोग बात। तो शाही इमाम पंजाब हुजूर को बड़े अदब से नाम लेते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बहुत से देवबंदी हुजूर सलाम कहते हैं, सलाम 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 कहते हैं। सब तो नहीं कहते, कुछ ऐसे हैं जो देवबंद वाले से सलाम सलाम कहते हैं, जल्दी जल्दी हुजूर सलाम सलाम। सलमान नदवी साहब तो अदब से नाम लेते हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी अदब से नाम लेते हैं। बाकी कुछ ऐसे हैं खबीस किस्म के जो सलाम कहते हैं। और सुनो, ये अपनी 4 किताबें क्यों रखते हैं देवबंद वाले भोपाल में, वो दिल्ली में सिर्फ 4 किताबें पढ़ो, तौरे ज़बूर इंजील कुरान की तरह से, फज़ाइल अमाल तबलीग निसाब। आप भोपाल में आ जाओ, दिल्ली में जाओ, तो आपको हर मेंबर पे 4 किताबें मिलेंगी फज़ाइल अमाल। ये कुरान की तफसीर रखते ही नहीं, मुफ्ती शफी साहब की तफसीर नहीं पढ़ते, मुफ्ती
तकी इस्माइल साहब की तफसीर नहीं पढ़ते, न पढ़ने देते, न पढ़ने भी नहीं देते। भोपाल में अगर आप कहो कि साहब ये तफसीर सुनाओ आप असर बाद या फजर बाद, तो मना कर देंगे, बल्कि हो सकता है लड़ाई करें, आपको डंडे से कूट डालें। अगर आपने ज्यादा करी तो आपको उठा उठा के पटक दें। ये कहेंगे यही सिर्फ 4 किताबें हैं असली ओरिजिनल, इसी में सब कुछ है, इसी को पढ़ो, डॉक्टर बनो, कलेक्टर बनो, इंजीनियर बनो, शेखुल अजीज बनो, मुफ्ती बनो, मुहद्दिस बनो। यही 4 किताबें इंजीनियर बना देंगी, कलेक्टर बना देंगी, जो इनकी हर मेंबर पे भोपाल में रखी हुई। अच्छा, जबकि अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, आखिरी इनमें 2 चीजें तुम्हारे दरमियान में छोड़ा हुए, कुरान, एक मेरी इज्जत, अहले बैत। फरमाया इन दोनों को अगर मजबूत थाम लिया तो फिर कभी गुमराह ना होगे। हुजूर ने तो ये फरमाया है। और ये भोपाल वाले क्या कर रहे हैं, दिल्ली वाले क्या कर रहे हैं कि अपनी 4 किताबें जो कांदला से लिखी वही पढ़ी जाएंगी। भोपाल में तफसीर बंद करवा दी थी इन्होंने, मुफ्ती हुसैन साहब को तफसीर नहीं करने दी, और ये इंदौर में कच्ची मस्जिद में तफसीर नहीं करने दी। तबलीग जमात वालों ने कि नहीं तफसीर नहीं होगी, वही किताबें पढ़ी जाएंगी। गाजियाबाद में नहीं करने दी तफसीर, कि वही किताबें पढ़ी जाएंगी जो 4 किताबें, यानी इनके जो अमीर साहब ने बताई ना, मौलवी कांदेलवी साहब ने, साहब ने। अब दारुल देवबंद के जब उन पर फतवा है तो क्यों नहीं मान रही है? कुछ नकली कासमी हो गए जो उस फतवे को नहीं मान रहे जो देवबंद से निकला है। जो असली कासमी तो मान रहा है, नकली कासमी नहीं मान रहा है। और इसी तरह से कुतुबे गुजरात हजरत मौलाना यूसुफ साहब वापी वाले, वो बहुत खुल के शूरा वालों का साथ देते हैं। शूरा वाले सही हैं, मतलब शूरा वालों को बांग्लादेश में मार तो डाला मरकज वालों ने। और सैकुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह भी तो यही बात फरमाया था ना कि मुसलमान आज जो जवाल फजीर हो गया है सिर्फ कुरान को छोड़ देने का वजह से। क्या बात कह दी आपने, बहुत हुजूर का फरमान है। हुजूर ने फरमाया अगर इन दोनों को मजबूत थाम लिया तो फिर कभी गुमराह ना हुए। कुरान एक इतरत यानी अहले बैत। आज दुनियाए बरेलवियत में, न दुनियाए देवबंदियत में, दोनों तबकों में, न अहले हदीस में, न जमात इस्लामी में, पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं भी कोई बता दे मुझे कि जश्न इमाम मूसा काजिम या इमाम हसन अस्करी या इमाम अली रजा के नाम से, इमाम तकी के नाम से किसी ने भी कराया हो, देवबंदी ने कराया हो, बरेली ने कराया, मुझे पोस्टर भेजे या तकरीर भेजे। मैं चैलेंज दे रहा हूँ, आधे घंटे की कोई तकरीर नहीं भेज सकता जिन जिन के नाम मैंने बताया। यहाँ तक कि इमाम आबिदीन के बारे में कोई 1 घंटे की तकरीर नहीं है किसी भी जमात के आलिम में। ये लोग तो दोनों आपस में लड़ाई जो चालू कर दी है उस टाइम में, उस जमाने में। अभी आप तबलीग जमात के इज्तिमा भोपाल में चले जाओ तो इनको किस्से खूब सुना देंगे, इलियास साहब ने ऐसा किया, यूसुफ साहब ने ये किया। तो फिर इमाम आबिदीन ने क्या किया, इमाम बाकर ने क्या किया, इमाम जाफर ने क्या किया। कभी मैंने भोपाल के इज्तिमा में मैं भी शरीक हुआ, मैं तो वहाँ पढ़ा हूँ 4 साल। कभी मैंने गरीब नवाज की शान में 5 मिनट की तकरीर नहीं सुनी आज तक। ना हजरत पीराने पीर की शान में सुनी, ना हजरत निजामुद्दीन औलिया की शान में सुनी। नाम सुना है, नाम कभी कभार लेते हैं, लेकिन 5 मिनट तक तकरीर नहीं थी। और इलियास साहब का खूब नाम लेते हैं, हर इज्तिमा में नाम आगा, यूसुफ साहब का, इलियास साहब का, इनामुल हसन साहब का। ये क्या तमाशा इन लोगों ने बना रखा, देवबंदी बरेलियों ने और ये जमात वालों ने। अरे जो चिल्ला 4 महीना न लगा उसको ये मुसलमान नहीं मानते सही, जब तक 4 महीना न लगा हुआ। इस जमाने में सबको चाहिए कि एक हो जाए, फिर भी एक नहीं हो रहा सब। एक कैसे होंगे जब ये अपनी तबलीग करेंगे, अपने फिरकों की तबलीग करेंगे। इस्लाम की तबलीग थोड़ी कर रहे हैं लोग। दावत इस्लामी वाले वो ज़कात सदका लेके अपने आदमियों को बांट रहे हैं साहब। एक घर से 5-5 हजार ले जा रहे हैं, मस्जिदों में चंदा कर रहे हैं, मदरसों का। अरे 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों का कितना खर्चा होगा? सब मिला के साल भर का 3 लाख होगा। अच्छा ठीक है हजरत, बच्चा को छोड़ने जाना है स्कूल। अच्छा आप चले आओ, इंशाल्लाह फिर बाद में मुलाकात करना, ठीक है। जज़ाकल्लाह फिद्दार।